آج یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئیں۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا، لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئیں۔ نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے، تبھی زمانے سے ڈر کر انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کر دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادھے اور دیانتدار آدمی تھے، کوئی رشتہ جلدی نہ جڑ سکتا تھا۔ تبھی نانا کی نظر اپنے نوعمر اور جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے غور کیا تو یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر اور شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جیسا چاہے آپ کر دیں۔ آپ سے بہتر خیر ہوا ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ اپنے ایک عینی ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا معنی رکھتا تھا۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے، وہ تو بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یوں منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے 9 عمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں ماں بن گئیں۔ میں 7 ماہی کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی، پھر بھی خالہ نے بہت دھیان اور محنت سے پالا۔ خالہ اگرچہ امی سے 7 برس چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی۔ امی نے تو مجھے جنم دیا تھا پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن نانی کی دیکھ بھال نے مجھے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست و توانا بھی ہو گئی، اور ایک صحت مند خوبصورت بچی کی صورت میں نانا کے آنگن میں چہکتی پھرتی تھی۔ والدہ تو ایک کمسن ماں تھی، بلکہ لڑکی جو خود بچپنے کی حدود سے نکلنے نہ پائی تھیں۔ وہ ماں کے فرائض سے ناواقف تھیں، مجھ کو کیوں کر سنبھالتی۔ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو VCR کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کمسن اور نادان بیٹے کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا اور منشی کو گھر داماد بنانا پڑا تھا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھریں اور اپنی منمانیوں کے باعث مسائل کا شکار ہوتی گئیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر میری والدہ صاحبہ کس مٹی کی بنی تھیں کہ ان پر بزرگوں کی بات کا بھی کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ان کو مزید باغی بناتی تھیں۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھیں۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھیں اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں دبے دبے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی وہ ماموں کو نہیں تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سا ہو گیا تو انہوں نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا عندیہ دے دیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسی تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کی بشرطیہ کی کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان، میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو سکھی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔
यूं अब्बू अपने कुंबे को लेकर अलहदा घर में रहने लगे। मकान मुतवस्सित दर्जे की आबादी में था, कम किराया था, मगर यहाँ इन्होंने आज़ादी का सांस लिया। जल्द ही अल्लाह ने मदद की और माकूल तनख्वाह पर एक सेठ साहब के यहाँ मुंशी हो गए। मकान का किराया भी सेठ ने ही देना मंजूर कर लिया, जो कि तनख्वाह के अलावा था। अच्छी गुजर बसर होने लगी। अब्बू तो सुबह निकलते और शाम को लौटते। वालदा ने नानी से कहकर शहाना को साथ रख लिया कि अकेली घर और बच्चे नहीं देख सकती। इन दिनों हम दोनों बहनें थीं और एक भाई, जो अभी सिर्फ 6 माह का था। खाला शहाना मेरे नन्हे मुन्ने भाई जवाद से बहुत प्यार करती थी। खुशी खुशी अम्मी के साथ रहने को आ गईं। नए घर में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मी घर से गैर हाजिर रहने लगी और हम तीनों बच्चों को खाला के सुपुर्द कर जाती, जो सारा दिन हमको देखती और खाना भी पकाकर खिलाती थी। छोटी बहन होने के नाते सारे काम अपना फर्ज समझकर करती। एक रोज अब्बू को मोहल्ले के एक शख्स ने कहा कि मियाँ, तुम तो दिन भर बच्चों का पेट भरने को मेहनत मुशक्कत करने के लिए निकलते होगे, लेकिन ये तुम्हारी बीवी सुबह सवेरे तुम्हारे जाने के बाद बन ठन कर कहाँ चली जाती है और शाम को तुम्हारे आने से कबल लौट कर आ जाती है। क्या ये भी कहीं नौकरी करने जाती है? वालिद साहब इस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गए। बात बना दी कि हाँ, नौकरी पर ही जाती है, मगर शको शुबे का अलाव खुद इनके दिल में भड़क गया। अब वो बेसुकून हो गए थे। अचानक घर आ जाते, अम्मी को गैर हाजिर पाते तो मुझसे और खाला से पूछते कि मरजाना किधर गई है। हम क्या जवाब देते? वो मुझको बताकर तो ना जाती थीं। अम्मी और अब्बू में चुपकलिश रहने लगी और इख्तलाफात बढ़ने लगे। अब इस बात पर झगड़ा रहता, जिससे घर का माहौल गंदा और ख़राब होता चला गया। लेकिन फिलहाल मोहल्ले में किसी को अंदरूनी इख्तलाफात का इल्म नहीं था। ताहम अब्बू अजाब में मुब्तला थे। रफ्ता रफ्ता इनका ये हाल हुआ कि वो हर दम अपनी बीवी को शक की निगाह से देखते थे। मोहल्ले वालों से भी ये बात कब तक छुपती। जब वो अब्बू की गैर मौजूदगी में अम्मी को नित नई गाड़ियों से उतरते देखते तो उन्होंने अब्बू के कान खाने शुरू कर दिए कि ये शरीफों का मोहल्ला है और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी गैर मौजूदगी में गैर आदमी आपकी सोजा मोहतरमा को लेने या छोड़ने आए। ये कैसा ऑफिस है और कैसी मुलाजमत है, जबकि खातून पढ़ी लिखी भी नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अपने घर के मामलात को चेक करें। अब्बू क्या चेक करते, वो तो पहले ही इस अमर पर परेशान थे। एक रोज अब्बू अपने काम से अचानक जल्द घर आ गए। इस वक्त तक अम्मी घर नहीं आई थी। वो दरवाजे में खड़े हो गए कि देखूं किधर से और किस तरह आती है। इसी वक्त वो एक लंबी कार से उतरी और सामने वाली गली से पैदल चलकर घर की तरफ आ रही थीं। वालिद साहब ने इस नज़ारे को घर के दरवाजे पर खड़े हुए देख लिया। जब वो घर में आईं तो उन्होंने इनको बालों से पकड़कर घसीटा और घर के दरवाजे से धक्का देकर गली में निकाल दिया। वालदा अब क्या लड़ती झगड़ती, वो अपने भाई के घर नानी अम्मी के पास चली गई। तब खाला को भी नानी घर आकर ले गई। अम्मी काफ़ी अरसा अपनी माँ के घर रहीं। अब्बू हमारे फूफी को ले आए, जो हमारे साथ रहने लगी, मगर फूफो कितना अरसा अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहती। वो रोज़ अपने भाई को समझाती थी कि सगीर बीवी को माफ़ कर दो और इससे वादा ले लो कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और ये दूध पीता बच्चा है, माँ के बगैर नहीं जी पाएगा। ऊपर के दूध से बच्चा कमज़ोर और बीमार रहने लगा है। बहन के समझाने से अब्बू हमारी नानी के घर गए। नानी खुद चाहती थी कि बेटी की शौहर से सुलह हो जाए ताकि छोटे बच्चों को इनकी माँ की जुदाई सहनी ना पड़े। वालदा से वादा लिया गया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगी और बगैर शौहर की इजाज़त घर से नहीं निकलेंगी। वो भी शायद हमारे लिए उदास थीं। वादा किया कि अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे घर की इज्जत पर हर्फ आता हो। अम्मी घर लौट आईं तो हम सब बच्चे खुशी से दीवाने हो गए। वो भी कुछ अरसे तक
अब्बू से किए गए वादे पर कायम रहीं, लेकिन शायद वो अपनी फितरत से मजबूर थीं कि फिर से वही हाल हो गया और इनकी ऐसी हरकतों से हमारी इज्जत जाती रही। जब वालिद साहब मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे तो उन्होंने मुलाजमत से छुट्टी ले ली और अम्मी की निगरानी को घर बैठ गए। अम्मी भी खावंद को नफरत की निगाह से देखती थीं और झगड़ा हद से बढ़ा तो अब्बू घर छोड़कर चले गए। वो काफ़ी दिन ना लौटे। जब मोहल्ले वालों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि इस औरत ने शायद कुछ गलत आदमियों की मदद से अपने खावंद को मरवा दिया है, इन बातों से रही सही इज्जत भी जाती रही और हमारा मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया। मोहल्ले वाले अलग परेशान करते। अम्मी ने सोचा कि इससे पहले के बाद पुलिस तक जाए, यहाँ से नकल मकानी कर लेनी चाहिए। सामान उठाकर हमारी वालदा नज़दीकी शहर चली आईं। नया शहर, नया मोहल्ला और नए लोग थे जो हमको जानते ना थे। उन्होंने खुश दिली से खुश आमदीद कहा और यहाँ हम सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। यहाँ आए 6 माह गुजर गए। मैं वालिद को याद करती और छुप छुप कर रोती। वालदा ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपना घर खरीद लिया। इसी दौरान नानी वफात पा गईं। खाला को भाइयों ने तंग किया तो वो मुस्तकिल हमारे घर आकर रहने लगी। अम्मी ने अब इनके जहन में भी बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया और वो भी वैसी ही हो गईं जैसी अम्मी थीं। अब मैं 15 बरस की हो गई थी, बाशऊर हो चुकी थी, काफ़ी बातें समझने लगी थी, हसास थी। जब वालिद के बारे में सोचती तो कलेजा मुंह को आने लगता था। खाला से बहुत लगाव था। जब इनको भी माँ की रविश पर चलते पाया और ज़्यादा सदमा हुआ। सोच भी ना सकती थी कि वो भी माँ जैसी हो जाएंगी। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छोटे बहन भाइयों को संभाल सकती थी। माँ और खाला बच्चों को मुझ पर छोड़कर घर से चली जाती। मैं 8वीं में थी, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोग यहाँ भी चैमगोइयाँ करने लगे। वो हमको गलत समझने लगे। अम्मी से सलाम दुआ तर्क करती। इन दिनों मैं इतनी परेशान थी कि क्या बताऊँ। समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। पढ़ाई छूट जाने का बेहद सदमा था। आखिर एक तरकीब समझ में आई। मेरे पास फुफ्फो का फ़ोन नंबर था। एक दिन जबकि अम्मी और खाला घर पर नहीं थीं, मैं पड़ोस में गई और पड़ोसन से इस्तदा की कि खाला जी मुझे मेरी फुफ्फो से बात करनी है, ये नंबर मिला दें क्योंकि अम्मी घर पर नहीं हैं और मेरे भाई की तबीयत ख़राब है। इस अल्लाह की बंदी को तरस आ गया और मुझसे नंबर लेकर मिलाया। इत्तफाक के फूफी जान ने ही फ़ोन उठाया। पहले पड़ोसन ने बात की कि आपकी भतीजी मारिया आपसे बात करना चाहती है। फिर मुझे रिसीवर दिया तो मैंने फुफ्फो से कहा, खुदा के लिए या तो आप हमारे पास आ जाइए या अब्बू को कहीं से भी ढूंढ कर घर भिजवाइए, क्योंकि वो नहीं आए तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। फुफ्फो ने तसल्ली दी कि तुम्हारे अब्बू जहाँ भी हैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने घर का पता भी इनको बता दिया। अब्बू गालिबन अपने भाइयों के घर पर थे। फुफ्फो ने जब मेरा पैगाम दिया तो वो खुद पर काबू ना रख सके और वो जल्द ही हमारे पास आ गए। मैंने कहा, अब्बू मेरी खातिर घर रहिए ताकि हालात और ख़राब ना हो। वालदा जैसी भी हैं, कम से कम हम दोनों बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही रूठे रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा। बात अब्बू की समझ में आ गई और जब वालदा आईं तो उन्होंने झगड़ा ना किया मगर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, अपनी रविश बदलो, अपने बच्चों की खातिर घर पर रहो। मैं कमा कर तुमको और अपने बच्चों को पालूंगा। ज्यादा की हिर्स में इज्जत को दांव पर ना लगाओ। घर से तो इज्जत गई, बाहर से ना जाए तो बेहतर है। इसी वजह से वापस आ गया हूँ। वालिद साहब को बीवी को समझाने के सिवा कोई चारा ना था। वो बीवी की गलत रविश से मुर्दा हो गए थे, फिर भी हमारी खातिर जिंदा रहना चाहते थे। नहीं चाहते थे कि अब इस जगह से भी बेइज्जत होकर निकलें। इनके आने से लोगों की चैमगोइयाँ बंद तो हो गईं, लेकिन मेरी माँ ने अपना चलन ना बदला। हमारा घर बेसुकून ही रहा। वालिद शको शुबे की आग में जल जल कर भस्म हो रहे थे, मगर बच्चों के सर पर छत बनकर रहना चाहते थे। अम्मी का भी इसमें फ़ायदा था। अब मोहल्ले वाले बातें नहीं बनाते थे और तंग करने की नौबत नहीं आई कि शोहर साथ रहता है। मेरा मसला हल हो गया।
मेरे प्यारे अब्बू के आ जाने से मैं फिर से स्कूल जाने लगी, क्योंकि अब अम्मी और खाला आसानी से सारा दिन घर से गायब नहीं रह सकती थीं। इनकी जो भी सरगर्मियां थी वो मांद पड़ गई थीं। इतना बहरहाल मैं जान गई थी कि माँ गैर मर्दों से इसलिए दोस्तियां पालती थी कि इनसे माली फ़ायदा उठा सके। कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक दिन तो हद हो गई। अम्मी ने घर से कदम निकाला और अब वो आ गए। वो इनको दहलीज पर से धकेल कर घर के अंदर लाए। पूछा किधर जा रही थी। अम्मी ने बहाना किया, बच्चों के कपड़े धोने थे, साबुन नहीं था, सामने स्टोर तक जा रही थी। घबराहट में इनसे माकूल बहाना बन नहीं पड़ा। दरअसल एक रोज कबल ही अबू राशन लाए थे और साबुन भी लाए थे। इन्होंने कहा कि कल तुमने साबुन मंगवाया है और आज ख़त्म हो गया। वो कैसे हुआ जबकि तुमने कपड़े भी नहीं धोए? मैंने दरअसल राशन खोला ही नहीं है। वालिद को इस झूठ पर गुस्सा आ गया। उन्होंने अम्मी को चाकू से मारना चाहा। मोहल्ले वाले बाबा को ठंडा करने के लिए बाहर ले गए। वो क़यामत का दिन था। हमारा मोहल्ले में पहला शोर शराबा था। वालिद साहब शदीद खलफशार का शिकार थे। अपनी औलाद की खातिर बीवी को तलाक भी नहीं दे सकते थे कि बेटियां किधर जाएंगी। वालिद साहब मामू के पास गए, सारा अहवाल कहा। अंदाज़ा तो इनको भी था, इस वजह से कोई मामू अम्मी को मुँह न लगाता था। बहरहाल बड़े मामू ने अबू को दिलासा दिया कि तुम सब्र से काम लो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। वो हमारे घर आकर रहने लगे। मामू भी कब तक पहरा देते। अब्बू अपने भाइयों के पास चले गए। कुछ दिन मामू हमारे साथ रहे, फिर इनकी बीवी ने शोर मचाया तो वो अपने घर चले गए। खर्चा देना भी बंद कर दिया। अम्मी ने फिर वही वतीरा इख्तियार कर लिया जिसमें इज्जत का तो घाटा था, मगर खुला खर्चा और खाना पीना अच्छा था। वो हराम के खर्चे पर हमको पाल रही थीं। मैं मजबूर थी, मगर दिल में ठान ली कि किसी तरह भी तालीम मुकम्मल कर लो तो फिर इज्जत वाली नौकरी करके बहन भाई को खुद संभाल लूंगी और हम अम्मी से अलहदा होकर अब्बू के पास चले जाएंगे। ऐसे हालात में भी मेहनत से पढ़ रही थी। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी। सालाना इम्तिहान सर पर थे। अब्बू मेरी खातिर फिर काम पर जाने लगे। सुबह जाते, रात को आते, सारी कमाई मेरी माँ के हाथ पर रखते, मगर इनकी शरीके हयात को शोहर की कमाई अच्छी ना लगती थी, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। अब्बू के काम पर जाते ही वो फिर अपनी उसी डगर पर चल पड़ी। ऐसी बातें नहीं छुपती। अब तो मोहल्ले वाले भी टो में थे। किसी ने वालिद के कान में ये बात डाल दी। इसके बाद एक बार फिर वालिद साहब गायब हो गए। इसको मुकम्मल आज़ादी नसीब हो गई। एक रोज चचा और फूफी वालिद साहब का पता करने आए कि काफ़ी दिन से मिलने नहीं आए, किधर हैं? अम्मी ने बताया कि वो तो कब से घर चले गए हैं। न जाने कहा, मालूम नहीं, हम तो खुद परेशान हैं। चचा को यकीन न आया, कहा कि तुमने खुद गायब करवाया है। हमको यकीन है, बताओ हमारा भाई कहाँ है, वरना हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। अम्मी डर गईं। इधर मैं, उधर फुफियाँ और चचा वगैरह सख्त परेशान थे और मेरे सालाना इम्तिहान में 15 रोज बाकी थे। घर में ऐसे आलम में परेशानी की वजह से पर्चों की तैयारी नामुमकिन थी। मेरी एक क्लास फेलो एकेडमी पढ़ने जाया करती थी। मैंने जब अपनी परेशानी का जिक्र किया, इसने एकेडमी के सर से बात की और मुझसे कहा कि कल से तुम एकेडमी मेरे साथ चला करो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पर्चों की तैयारी कराते हैं। मैं फौजिया के साथ एकेडमी जाने लगी। सर ने मुझे परेशान देखा तो कहा कि तुम क्यों परेशान हो। मैंने अलहदगी में इनको सारा किस्सा सुनाया तो इनको मेरी वालदा के किरदार का इल्म हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तैयारी खुसूसी तौर पर अलहदा टीचर से करा देता हूँ। उन्होंने एक शख्स के जिम्मे लगा दिया। 2-3 रोज तो इन साहब ने बहुत खुलूस और तवज्जो से पढ़ाया, लेकिन फिर इसकी नीयत खराब होने लगी और एक रोज जबकि तमाम तालिबे इल्म चले गए, इसने क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मुझको भी आबरू करना चाहा, मगर मैंने फरासत से काम लिया और कहा, सर जैसी मेरी माँ है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक अच्छे ख्यालात की पाकीज़ा मगर मजबूर लड़की हूँ। खुदारा मुझ पर दस्तराजी करके मेरी इज्जत को खाक में ना मिलाए। अगर मैं आपको इतनी पसंद आ गई हूँ
बेशक आप मुझसे निकाह कर लें, मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने पर भी तैयार हूँ। कम से कम जायज़ तरीके से तो आपकी कहलाऊंगी। शायद मेरी मासूमियत और बेबसी ने इसके दिल पर असर किया। बोले, मगर मैं तो उम्र रसीदा और शादीशुदा शख्स हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। क्या ऐसी सूरत में तुम मुझसे निकाह कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी। आप उम्र रसीदा है या बाल बच्चों वाले, मगर आप मुझे इज्जत तो दे सकते हैं। इज्जत की जिंदगी के साथ शोहर की हलाल की कमाई औरत का फख्र होती है। माँ उम्र रसीदगी की तरफ जा रही है, ऐसे में इनकी हिर्स भरी तबीयत का पहला निशाना मैं हरगिज़ नहीं बनना चाहती। इससे तो बेहतर है कि मेरी शादी किसी ऐसे फकीर से हो जाए जिसके घर में गुर्बत से फाके पड़ते हों, मगर वो मेरी इज्जत का मुहाफिज बन जाए। सर, मैं बेबस और मजबूर हूँ, मगर अच्छी सोचों की मालिक और एक बाअस्मत लड़की हूँ। मैं ये कहते हुए रो रही थी और मेरी हिचकियाँ बंद गई थीं। इस शख्स के अंदर का शैतान उसी दम मर गया और ज़मीर जाग गया। इसने कहा, बेशक तुम एक ऐसी लड़की हो कि कोई भी मर्द तुमसे शादी करके फख्र महसूस कर सकता है, ख्वाह वो उबाश ही क्यों ना हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी को दोज़ख बना देगी। इसके भाई रसूफ वाले हैं। हाँ, हम अपने छोटे भाई के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं। इसने इन्हीं दिनों वकालत का इम्तिहान पास किया है। अगर तुम राज़ी हो तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारा निकाह करा दूंगा। बहरहाल मैं अपने गलत इरादे पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हारी वालदा के बारे में सुना तो यही समझ लिया कि तुमको भी वो इस रविश पर चला रही होंगी। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है। फिर इसने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने इनके छोटे भाई से निकाह पर रजामंदी जाहिर कर दी तो उन्होंने ये शर्त रखी कि कभी इस वाक़ये का तस्करा मेरे भाई से मत करना। मैंने वादा किया। जाहिर है कि ऐसी गलती करके मैं अपना दामन अंगारों से क्यों कर भर लेती। सर ने मेरी शादी अपने छोटे भाई से करवा दी। माँ तो क्या, मामू भी शरीक ना हुए, मगर मैंने किसी की परवाह ना की। इज्जत भरी जिंदगी की आरज़ू में सब रिश्तों को ठुकरा कर चली आई। मेरे शौहर का नाम ज़फ़र है और किरदार में हीरा है, जिन्होंने मुझे इज्जत और ज़िंदगी का सब सुख दिया है। कभी मेरी माँ का ताना नहीं दिया, इसलिए मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फुफ्फो ने मेरी छोटी बहन को माँ से ले लिया क्योंकि वालिद साहब का कोई सुराग नहीं मिला। छोटा भाई माँ के साथ ही रहा, मगर जब बाशऊर हुआ तो खुद ब खुद मेरे पास आ गया, जिसको मेरे खामन ने पढ़ाया लिखाया और फिर अपने साथ वकालत में लगा लिया। आज इसकी ज़िंदगी सुधर गई है और छोटी बहन की शादी फुफ्फो ने अपने बेटे से कर दी है। वो भी अपने घर में खुश है, मगर माँ अब अकेली रह गई है, जिसका बुढ़ापा ख्वार है और इनके लिए हर नमाज के बाद अपने रब से रहमत की दुआ किया करती हूँ। इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। वालिद बहुत याद आते हैं। इनके भाई बहनों ने इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। सोचती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करते थे, शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना कभी तो हमसे मिलने आते।